ओके चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था मेनली अबाउट द मैग्नेटिज्म ऑफ बार मैग्नेट, राइट। नाउ इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, राइट। ओके, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड at each and every point on the surface and near the surface of earth, right? And this magnetic field of the earth is basically of the order of 10 power minus 5, right? कितना है इसका basic magnitude जो है वो, so the earth magnetism has the order of 10 power minus 5 Tesla, मतलब it is somewhere near to 10 power minus 5 Tesla. Okay, now what is the reason for this magnetism? So you can consider that there is a very giant bar magnet in the core of earth. अर्थ के कोर में एक बहुत ही बड़ा giant bar magnet है, right? This is the earth. Consider this is the geometric axis of earth. What is it? Geometric axis of earth about which the earth will rotate. तो ये कौन सा एक्सिस है? ये है geometric axis. Sorry, geometric. Yeah, exactly. Geometric axis, right? About which the earth is rotating. Okay, so ये जो आपका है, this is what? This is your north pole geometric. कौन सा north pole है? This is the geometric north pole and this is the geometric south pole. This is geometric south pole, right? Now you can consider there is a giant bar magnet in the core of earth, and when you study the magnetic field of earth, you will find that there is some point near the south pole. There is some point near the south pole from where the magnetic field emerge from the earth surface. साउथ पोल के पास ऐसा रीजन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ऐसे इमर्ज होकर बाहर आता है. The magnetic field emerge from the south pole, and this magnetic field will enter in the surface somewhere near the north pole, right? Okay, so this you only can explain if you consider that there is a giant bar magnet. Okay, and we know the magnetic field of the bar magnet is starting from north pole and ending at south pole. तो you can consider कि एक giant bar magnet है जिसका north pole जो है ना वो इस जोग्राफिक साउथ के कहीं पास है, और उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है ना वो ज्योमेट्रिक नॉर्थ के कहीं पास है, एंड दैट इज वाई यहाँ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बना के इधर अंदर जा रहा है वापस. दिस इज व्हाट वी कैन एज्यूम, राइट. बट एक्चुअली ऐसा कोई जायंट बार मैग्नेट नहीं है. दिस इज जस्ट व्हाट यू कैन से इमेजिनरी थिंग. ऐसा कोई जायंट बार मैग्नेट होना चाहिए अर्थ के सरफेस के अंदर, बट एक्चुअली कोई ऐसा बार मैग्नेट नहीं है. बट द रीजन जो अभी कंसिडर किया जाता है, दैट रीजन इज द डायनेमो इफेक्ट. द रीजन ऑफ दिस मैग्नेटिज्म इज बार मैग्नेट. व्हाट आई एम राइटिंग हियर? डायनेमो इफेक्ट. Reason of the bar magnet is dynamo effect, and we know that in the exterior of the earth core के exterior में बहुत सारा lava है, right? Okay, and that lava contain magnetic material such as iron and nickel, and this iron and nickel are basically in motion, so they will produce the current loops, and we know that whenever there is a current loop there is a magnetic field, right? So we can consider this is the reason behind the earth's magnetism. Okay, so dynamo effect is basically due to convective current in the magnetic fluid, due to the convective current in the magnetic fluid that contain iron and nickel in the exterior of the earth core, in the exterior of earth core, right? The earth possess magnetism. Due to this earth possess magnetism,
राइट। तो अर्थ का जो लावा है, लावा के अंदर जो आयरन के पार्टिकल है या निकल के पार्टिकल है, दे आर इन मोशन एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट द करंट लूप्स विल जनरेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट लूप द अर्थ possess मैग्नेटिज्म, दिस इज व्हाट इट इज assumed, राइट। चलिए अब कुछ और चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, राइट। नाउ दिस इमेजिनरी मैग्नेट जो है आपका, वो इमेजिनरी मैग्नेट में से पास होता हुआ जो एक्सिस है ना, राइट, इमेजिनरी मैग्नेट में से पास होता हुआ जो एक्सिस है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज जियोमैग्नेटिक एक्सिस। व्हाट इज दिस एक्सिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज geomagnetic axis. This axis is called as geomagnetic axis, right? And it is found that के geographic axis and geomagnetic axis exactly coincide नहीं करते हैं, but they are at some angle and they are at an angle of 11.3 डिग्री। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 11.3 डिग्री का एंगल है। 11.3 डिग्री एंगल इज देयर, राइट। चलिए, सो एंगल बिटवीन geographic axis, that is the axis of rotation, and geomagnetic axis, this angle is 11.3 degree. This angle is how much? This angle is 11.3 degree, right? चलिए, अब ये geomagnetic axis जो है, वो geomagnetic axis साउथ पोल के पास जहाँ पे टच होगा ना, राइट, उसे कहते हैं साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। और इस पॉइंट को हम कहेंगे जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, राइट। तो जब भी हम ये नोटेशन करेंगे NG एंड SG, दिस आर जियोग्राफिक पोल और जियोमेट्रिक पोल, यू कैन राइट, ओके। एंड व्हेन यू राइट NM एंड SM, राइट, जब भी आप न्यूमेरिकल में NM या SM लिखोगे ना, उसे कहेंगे हम जियोमैग्नेटिक पोल या ओनली मैग्नेटिक पोल। चलिए, कहाँ पर है ये मैग्नेटिक पोल्स? ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, उसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है ना, दिस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज 79.74 डिग्री नॉर्थ, राइट, एट लैटिट्यूड, दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ दिस। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट का लोकेशन दिखाने के लिए दो चीज़ें होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये सब हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, कभी आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ोगे आगे जाके, सो यू विल लर्न अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, विच हैज द लैटिट्यूड ऑफ 79.74 एंड लॉन्जिट्यूड है उसका 71.8 डिग्री वेस्ट इज द लॉन्जिट्यूड ऑफ दिस, ओके। एंड दिस प्लेस इज समवेयर नियर नॉर्थ कनाडा। कहाँ पर है ये बेटा? आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, दैट इज समवेयर नियर नॉर्थ कनाडा। ओके, लेट्स राइट वेयर इज द साउथ पोल। साउथ पोल कहाँ पर है? तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो कहीं यहाँ पर है नीचे, ओके। तो एंटार्क्टिका के पास है ये कहीं पे। चलिए, इसका अगर इसका एग्जैक्ट पोजीशन देखेंगे ना, सो इट इज 79.74 डिग्री साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट, राइट, एंड दिस इज समवेयर इन एंटार्क्टिका। दिस इज समवेयर इन एंटार्क्टिका, राइट। तो इतना याद रखना बेटा, अर्थ जो है उसको दो एक्सिस है। एक एक्सिस जो है वो उसका रोटेशन एक्सिस है जो एग्जैक्टली वर्टिकल होगा, दूसरा जो है वो उसके मैग्नेटिज्म का एक्सिस है। वी अज्यूम दैट देयर इज अ जायंट बार मैग्नेट, और उस बार मैग्नेट का जो एक्सिस है वो आपके जियोमेट्रिक एक्सिस के साथ 11.3 डिग्री एंगल के ऊपर है, राइट। मैग्नेटिज्म जहाँ से बाहर आ रहा है अर्थ के सरफेस में से, उसे कहेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, और मैग्नेटिज्म जहाँ पे अंदर जा रहा है उसे कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ओके। चलिए, पहले इतना फटाफट कॉपी करेंगे, फिर अर्थ के मैग्नेटिज्म से जुड़े हुए 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखने हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म हमें सीखने हैं। चलिए, इसको कॉपी करेंगे क्विकली, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 2 इंपॉर्टेंट टर्म। वन इज द एंगल ऑफ declination, other is the angle of dip. Both things are very important to study. Okay, let's talk about the angle of declination. We will denote this by symbol D. And angle of dip. Dip angle is also called as angle of inclination, and we will denote this by symbol I. Okay, let's try to understand this. So as we have seen that के जियोमेट्रिक एक्सिस एंड जियोमैग्नेटिक एक्सिस जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है,
right? So at any point on the earth surface, when you will place a compass, जब भी आप एक कंपास रखोगे या कोई मैग्नेटिक नीडल को रखोगे, so that magnetic needle will not stay exactly in the geographic north south, but that magnetic needle will stay in geomagnetic north south, right? जब आप किसी नीडल को कहीं भी रखोगे तो वो नीडल जो है ना वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ में स्टेडी नहीं होने वाला है, इट विल बिकम स्टेडी इन जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। ओके, तो ये समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है व्हाट इज कॉल्ड एज मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेरिडियन। ओके, तो दिस इज द अर्थ सरफेस। ओके, दिस इज योर जियोमैग्नेटिक जियोग्राफिक एक्सिस, दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, राइट? एंड दिस इज योर जियोमैग्नेटिक axis, this is geomagnetic north, this is geomagnetic south. Okay, this is your magnetic axis and this is axis of rotation, or you can say geographic axis. Right, now let's try to understand what is a meridian. So meridian is basically imaginary plane. मेरिडियन क्या है? मेरिडियन जो है वो एक इमेजिनरी प्लेन है which pass from the point एंड द एक्सिस। कहाँ से पास होने वाला प्लेन है? दिस इज द इमेजिनरी प्लेन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे आपको मेरिडियन चाहिए, राइट? सो इट इज द प्लेन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड द एक्सिस, राइट? तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सिस है, तो वी विल बेसिकली गेट टू टाइप्स ऑफ द मेरिडियन ऑल्सो। एक आपको मिलेगा जियोग्राफिक मेरिडियन, दूसरा आपको मिलेगा जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, चलिए तो पहले ये बात करते हैं मेरिडियन कहाँ पर है। तो सपोज ये आपका पॉइंट है, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है ना तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। इफ देर इज एनी 2 पॉइंट यू कैन ड्रॉ द लाइन फ्रॉम लाइन आउट ऑफ दैट। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ द प्लेन, अगर आपको प्लेन डिफाइन करना है ना तो आपको कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। सो व्हेन एवर देयर आर 3 पॉइंट्स यू कैन ऑलवेज डिफाइन अ प्लेन पासिंग फ्रॉम द 3 पॉइंट्स, राइट? तो हियर ऑल्सो आई हैव 3 पॉइंट। इफ आई टॉक अबाउट द जियोग्राफिक मेरिडियन, सो मेरे जो 3 पॉइंट है ना, दैट इज अ पॉइंट वेयर आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक थिंग्स। ओके, एंड दिस आर द 2 पॉइंट्स, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, राइट? तो इन 3 पॉइंट में से पास होता हुआ एक प्लेन मिलेगा जो आपके इस अर्थ को कट करेगा, राइट? दिस विल कट द अर्थ। ओके, चलिए बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये अर्थ है, राइट, तो इसके ऊपर आप ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकते हो। दिस ऑल सर्कल विल बेसिकली पास फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, एज यू कैन सी। हर एक सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? नॉर्थ और साउथ में से पास हो रहा है। ईच एंड एवरी सर्कल विल पास फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, एज यू कैन सी हियर, राइट? ओके, सो यू विल गेट नंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सर्कल। आपको बहुत सारे ऐसे सर्कल मिलेंगे एंड दिस सर्कल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल सर्कल्स। क्या कहते हैं इसको? लॉन्जिट्यूडनल सर्कल्स कहते हैं, राइट? तो इसी तरह से ये पॉइंट, ओके, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, इन तीनों में से पास होता हुआ आपको एक प्लेन मिलेगा। दिस इज द प्लेन पासिंग फ्रॉम दिस 3, राइट? ये एक आपको प्लेन मिला। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था एंड आई टोल्ड यू कि एक वीडियो को देख लेना अच्छे से ताकि आपको थोड़ा व्यूज जो है वो क्लियर रहे, राइट? सो दिस इज द प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड द जियोग्राफिक एक्सिस, राइट? तो पहले मैं लिख देता हूं व्हाट इज जियोमैग्नेटिक जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन, it is imaginary vertical plane passing from point on surface of earth, passing from point on surface of earth and contain geographic axis, which contain geographic axis, right? Which contain what? Geographic axis. Okay, चलिए, now you can also have the magnetic meridian. आपको क्या मिलने वाला है? आपको मैग्नेटिक मेरिडियन भी मिलने वाला है। So the definition is going to be same. The definition will be same. It is also imaginary vertical plane passing from the point on the surface of earth, and instead of the geographic axis there will be magnetic axis, right? So you can add the same thing you'll have to repeat here, but it contain what? It contain geomagnetic axis,
इट कंटेन जियोमैग्नेटिक एक्सिस, राइट। क्या कंटेन करना चाहिए, वो जियोमैग्नेटिक एक्सिस कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपका पॉइंट ये रहा, दिस इज द पॉइंट, राइट। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल प्लेन विच पास फ्रॉम द 3 पॉइंट, विच आर द 3 पॉइंट्स, देखो ध्यान से, विच आर द 3 पॉइंट्स, सो दैट 3 पॉइंट कंपल्सरी पास फ्रॉम दिस पॉइंट, ये तो आपका जहाँ पे आपको सारे टर्म चाहिए वो आपका ये पॉइंट है, एंड दिस आर द अदर 2 पॉइंट, दैट इज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इन तीनों में से पास होता हुआ जो आपका दूसरा प्लेन बनेगा ना, राइट, इन तीनों में से पास होता हुआ जो आपका दूसरा ये प्लेन बनेगा, दिस प्लेन ब्लू कलर वाला, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज दिस प्लेन कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, नाउ इफ यू विल पुट अ मैग्नेटिक नीडल एट दिस पॉइंट, अगर आप मैग्नेटिक नीडल को इस पॉइंट पे रखोगे ना, तो वो मैग्नेटिक नीडल जो है ना, वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में नहीं रहना है, दिस विल रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ द जियो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, राइट। मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में रहेगा? वो उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, ना कि जियोग्राफिक, राइट। तो आप इसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे दिखा सकते हो? तो ये आपका एक मेरिडियन है, दैट इज अ वर्टिकल प्लेन, राइट। अभी आपको प्लेन इस तरह दिखाया गया था थोड़ा क्रॉस, अब मैं इसको ऐसे वर्टिकल कर रहा हूं, तो आपको खाली ऐसे ही दिखने वाला है, राइट। सो दिस इज योर जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या है ये भाई? आपका ये है आपका जियोग्राफिक मेरिडियन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, right? Now there is one more plane which is magnetic meridian. Magnetic meridian, as you can see, there is some angle between these two at any point, right? Okay, so this is the magnetic needle. अगर आप magnetic needle को रखोगे ना, तो magnetic needle will remain in which meridian? Magnetic needle will remain in magnetic meridian, not in geographic meridian. मैग्नेटिक नीडल कहाँ रहने वाला है? मैग्नेटिक नीडल आपका स्टेडी होने वाला है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? तो दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन. This is magnetic meridian, right? And this angle between geographic meridian and magnetic meridian is called as angle of declination D. क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन डी, राइट? तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ओके. Okay, so let's write the definition of the declination here. Declination D. Declination is, you can define this as angle between geographic meridian and magnetic meridian. Angle between geographic meridian and magnetic meridian is called angle of declination D. या तो आप ऐसा भी कह सकते हो angle between the true north and magnetic north. This is the magnetic north south direction, right? जहाँ पे आपका नीडल रहेगा वो magnetic north south direction होगा. तो you can also write this as angle between true north and magnetic north. Angle between the true north and magnetic north is also called as angle of declination D. And this angle of declination varies from point to point. Angle of declination जो है वो अलग अलग पॉइंट के ऊपर वेरी होने वाला है, राइट? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन विल बी वेरी हाई एट द हाई लैटिट्यूड, राइट? हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या है बच्चों? तो लैटिट्यूड एंगल क्या होता है? दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, राइट? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर यहाँ पे आपका पॉइंट है तो इस पॉइंट को आप सेंटर के साथ जोड़ो, वो इक्वेटोरियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है ना, उसे कहता है लैटिट्यूड. ये आपने ग्रेविटी में सीखा था, राइट? तो जहाँ पे लैटिट्यूड बड़ा होगा ना, वहाँ पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी ज़्यादा होगा. जैसे जैसे लैटिट्यूड कम होने वाला है, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी कम होता जाएगा, राइट? सो आई कैन मेक अ स्मॉल पॉइंट हियर. डेक्लिनेशन इज मोर at high latitude. Declination is more at high latitude and it is smaller or less at low latitude. Low latitude मतलब near equator. Near equator, that is a low latitude, right?
इक्वेटर के पास अगर आप आओगे बच्चों तो इक्वेटर के पास ये जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है वो कम होता जाएगा। अगर अपने इंडिया की बात करें ना तो दिल्ली का लैटिट्यूड कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के अंदर। तो दिल्ली का कुछ लैटिट्यूड, बस गिव मी सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ था। ओके, दिल्ली का है 0.41 डिग्री ईस्ट। दिल्ली का लैटिट्यूड बहुत कम है। सो दिल्ली का लैटिट्यूड है आपका 0 डिग्री 41 ईस्ट, दिस इज फॉर दिल्ली। और बॉम्बे का लैटिट्यूड है 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट, दिस इज एट मुंबई, राइट। तो आप देख सकते हो, आपको पता भी होना चाहिए बच्चों कि आपका जो इंडिया है ना, आपका मतलब हमारा जो इंडिया है ना वो इक्वेटर के बहुत पास है। इंडिया जो है ना दिस इज लोकेटेड समवेयर नियर इक्वेटर, यहाँ पे कुछ है इंडिया। ओके, सो एज द इंडिया इज नियर टू द इक्वेटर, राइट। तो इंडिया के जितने भी प्लेसेस है ना बेसिकली पूरे इंडिया में लैटिट्यूड बहुत कम रहता है। अगर लैटिट्यूड कम है तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी कैसा रहना है, कम रहना है। इफ़ द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज लेस तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इफ़ यू हैव अ मैग्नेटिक नीडल, राइट, दैट मैग्नेटिक नीडल विल लीड यू टू द परफेक्ट डायरेक्शन, राइट। क्योंकि अगर आपको मान लो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में जाना है एंड इफ यू आर यूजिंग द मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल तो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में थोड़ी स्टेडी रहना है। मैग्नेटिक नीडल विल बिकम स्टेडी इन ज्योमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, राइट। बट द थिंग इज कि व्हेन योर प्लेस इज समवेयर नियर द इक्वेटर, जैसे कि इंडिया, अगर आप नियर इक्वेटर पे हो ना तो इशू इतना नहीं है, बिकॉज इक्वेटर के ऊपर डेक्लिनेशन एंगल कम होता है, राइट। द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज लेस एट द इक्वेटर, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस लेस एंगल अगर आप मैग्नेटिक नीडल को यूज़ भी करोगे तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है, ओके। बट अगर आप पोल के पास मैग्नेटिक नीडल यूज़ करोगे देन देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज ट्रबल, राइट, बिकॉज पोल के पास ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का एंगल बड़ा होने वाला है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड एज डेक्लिनेशन। वापस एक बार समझेंगे, डेक्लिनेशन इज बेसिकली एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो मेरिडियन क्या है, तो मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन जो पास होना चाहिए पॉइंट में से एंड एक्सिस में से, राइट। अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन है तो पॉइंट और ज्योग्राफिक एक्सिस में से पास होगा। जो मैग्नेटिक मेरिडियन है तो पॉइंट एंड मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होने वाला प्लेन। और ये दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा ना दैट एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आने वाला है एंगल ऑफ डीप। फटाफट इसको कॉपी करिए पहले। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप क्या होता है, तो बेसिकली अगर आप कोई मैग्नेटिक नीडल लोगे, राइट, एंड दिस मैग्नेटिक नीडल इज फ्री ऑन द पाइवट। पाइवट के ऊपर वो फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो रोटेट करने ही वाला है, बट इट शुड ऑल्सो बी एबल टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, ओके। सो दैट काइंड ऑफ द नीडल व्हेन यू विल पुट इट फ्रीली you will find that the needle is going to align itself in a magnetic direction or in the magnetic meridian, but that needle will also bend at some angle with horizontal. वो needle जो है ना horizontal के साथ भी कुछ एंगल के ऊपर bend होने वाला है। तो वो needle horizontal के साथ जितने एंगल पे bend होगा ना that is called as angle of deep। क्या कहते हैं उसको, angle of deep कहते हैं, right। तो I will write here magnetic needle will make some angle with the vertical, sorry, with the horizontal, and this angle is called angle of deep, that is I। चलिए इसको एक छोटे से फिगर से आप समझोगे बच्चों। सपोज ये आपका पिवट है, राइट, and this is a magnetic needle, okay। So if you will find that the magnetic needle will remain somewhat like this. Can you see this is a little bit inclined? Okay, let me make it more inclined so that the angle should remain very clear to you. The magnetic needle will remain somewhat like this, okay, and this is the center and this is the horizontal line. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। और आपका जो नीडल है ना उसका एक्सिस ऐसा हो चुका है, दिस इज द एक्सिस ऑफ नीडल, ओके। मतलब आपका जो नीडल है ना वो वर्टिकल के साथ इतने एंगल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल के ऊपर झुक गया है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ओके। दिस नीडल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ,
राइट। नीडल का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ रहने वाला है, बट वो वर्टिकल के साथ भी थोड़े से एंगल के ऊपर झुक, हॉरिजॉन्टल के साथ भी थोड़े से एंगल के ऊपर झुक जाएगा, वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहने वाला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, या अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एट ऑल द पॉइंट। अर्थ का मैग्नेटिज्म हर एक पॉइंट के ऊपर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। दिस मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ हैज टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। सो वी कैन राइट हियर दिस हैपन एज Earth's magnetism is not perfectly horizontal at all points, right? And because of some vertical component of the magnetic field, जो नीडल है ना वो थोड़ा बहुत झुक जाएगा एंगल के ऊपर, ओके। तो हॉरिजॉन्टली तो वो घूम के नॉर्थ साउथ में एडजस्ट हो जाएगा, बट वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रहने वाला है, वो थोड़ा से एंगल पे ऐसे वर्टिकली भी डाउन हो जाएगा, और जितने एंगल पे डाउन होगा ना, वर्टिकल इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ डीप। क्या कहते हैं उसको, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यू कैन से। चलिए इतना कॉपी करेंगे, फिर एक फिगर बनाएंगे, उसके अंदर हम अर्थ के कंपोनेंट सारे एक साथ में दिखा देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट कॉपी करिए इसको। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर इट इज द अर्थ, दिस इज योर geographic north and geographic south, okay, and this is some point on the earth's surface. So at this point there will be two components of the earth's magnetic field. एक component जो surface को tangential होगा, एक component जो surface को tangential होगा, that is a horizontal component of the earth's magnetic field which we call as HE, or this will call as HE, horizontal component of the earth's magnetic field. Let me specify here, HE is horizontal component of Earth's magnetic field, right? And there will be also vertical component. Vertical component of the Earth's field will be towards the center, right? This is vertical component which we will denote by symbol ZE, right? So ZE is basically vertical component of Earth's magnetic field, vertical components of Earth magnetic field. As there is horizontal and vertical component, the resultant component or resultant magnetic field will be somewhere in this direction. You cannot specify it exactly, right? The resultant magnetic field will be completely dependent on the horizontal and vertical component, right? So this BE is net magnetic field, net magnetic field of Earth at that particular point. ओके, चलिए ये फिगर आपको इतना कोई काम में आने वाला नहीं है, बट यहाँ पे जो एक फिगर बनाएंगे ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से। ओके, सो लेट अस कंसिडर दिस इज द geographic meridian. At some point, what is this? This is geographic meridian. Okay, and at this particular place, let's say the geomagnetic meridian is this. This is the geomagnetic meridian. कौन सा मेरिडियन है भाई? ये जो दूसरा बनाया ना, okay, you can consider this as a notebook. आप इसको ऐसा notebook consider करो. You can consider it like this. There are the two planes, right? आपको दिख रहा है ये? There are the two planes. एक जो है, right? This is a geographic मेरिडियन, और ये जो दूसरा है वो है जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, और दोनों मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दैट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट? सो दिस इज द जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, और यू कैन जस्ट राइट मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड द एंगल बिटवीन बोथ द मेरिडियन इज व्हाट? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन डी. ओके, दोनों के बीच का जो आपका एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, राइट? अब आपका जो मैग्नेटिक नीडल रहेगा, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखोगे ना, सो मैग्नेटिक नीडल विल रिमेन इन मैग्नेटिक मेरिडियन. मतलब नीडल जो है ना वो इस ब्लू वाले प्लेन के अंदर रहने वाला है, बट नीडल इज नॉट गोइंग टू रिमेन हॉरिजॉन्टल. नीडल जो है वो कुछ एंगल के ऊपर बेंट हो जाएगा. सो इफ यू विल प्लेस द नीडल हियर,
अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखोगे ना, सो व्हाट विल हैपन, नीडल इज गोइंग टू बेंड एट सम एंगल एंड दैट विल रिमेन इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। तो नीडल जो फ्रीली सस्पेंड आपने किया है तो वो रोटेट करके फाइनली इस प्लेन के अंदर आ जाएगा। कौन से प्लेन के अंदर, ब्लू वाले प्लेन में, और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के साथ भी वो झुक जाएगा, राइट। सो योर नीडल विल रिमेन, यहाँ पे नहीं लिखना था इसको, ओके लेट मी राइट इट समवेयर एल्स। दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन, ओके। तो आपका जो मैग्नेटिक नीडल रहेगा ना बच्चों, दिस नीडल विल रिमेन समवट लाइक दिस, राइट। नीडल जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली योर मैग्नेटिक नीडल। कहाँ रहेगा वो, इट विल रिमेन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। चलिए अब नीडल जो है, नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो हमने यहाँ पे लिखा है BE, नेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नीडल जिस डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड इस मैग्नेटिक मेरिडियन पे ये डायरेक्शन का जो आपका कंपोनेंट है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और मेरिडियन पे ये जो कंपोनेंट रहेगा, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम लिखते हैं ZE। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और आपका नीडल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जितने एंगल पे झुका, ये रहा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन I, और इज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन I। वापस एक बार देखते हैं पूरे को, राइट। सपोज ये मैग्नेटिक, पहले मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्ट लेते हैं, राइट, ओके। देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ओके। सो आई विल जस्ट मेक दिस फिगर वन मोर टाइम, और अब मैं आपको डायरेक्टली जो है ना वो मैग्नेटिक मेरिडियन दिखा रहा हूँ पहले। दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, विच मेरिडियन इज दिस, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। वापस एक बार फिगर को समझो, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो सारा इस मैग्नेटिक मेरिडियन में रहने वाला है। अर्थ का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में रहने वाला है, ओके। और आप जब नीडल को रखोगे तो नीडल विल स्टे इन द नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो अगर आपका नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेट्स से दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड BE, राइट। तो जो नीडल आप रखने वाले हो ना, वो नीडल कैसे रहेगा बच्चों, नीडल विल रिमेन स्टेडी इन दिस डायरेक्शन, नीडल विल रिमेन स्टेडी लाइक दिस, राइट। तो नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल झुका, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन I। नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल झुका, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन I। चलिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, दैट इज HE। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, दैट इज ZE, ओके। तो ये सब कुछ हो गए कंपोनेंट्स इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जियोग्राफिक मेरिडियन जो एंगल बनाएगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो मान लेते हैं कि ये है आपका जियोग्राफिक मेरिडियन, डॉटेड लाइन। सपोज दिस इज योर जियोग्राफिक मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन है भाई आपका, जियोग्राफिक। तो जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों स्क्वायर के बीच का जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन D, और इज एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन D। तो दिस इज हाउ यू कैन शो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन सिंगल फिगर। चलिए यहाँ पे एक दो चीजें हम देखेंगे बच्चों। सो इफ यू राइट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन राइट इट वेरी सिंपली। कैसे लिखोगे बच्चों, तो हम लिखेंगे ये जो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ओके, वो HE के साथ कितना एंगल बना रहा है, I एंगल बना रहा है। मतलब HE जो है ना वो एंगल के पास वाला कंपोनेंट है। पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। क्या होता है, पास वाला कंपोनेंट जो है वो कॉस कंपोनेंट होता है। और आई कैन ड्रॉ वन मोर स्मॉल फिगर हियर, दिस इज योर HE, दिस इज योर VE, एंड दिस इज द रिजल्टेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज मेकिंग एंगल I, राइट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ I एंगल बना रहा है। सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन राइट इन अ वेरी सिंपल वे दैट HE इज इक्वल टू व्हाट, BE इंटू कॉस I। HE इज इक्वल टू BE इंटू कॉस I, एंड VE जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो एंगल के सामने है, तो वो हो जाएगा आपका BE इंटू साइन I। horizontal component is BE into cos I, vertical component is BE into sin I. From this दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे you will get BE is equal to under root of HE square plus VE square. This is a very simple thing जो आपको पता ही है,
राइट, पाइथागोरस आप यूज करके रिजल्टेंट फील्ड निकाल सकते हो, राइट। इफ यू डिवाइड दिस बोथ इक्वेशन व्हाट यू विल गेट, बी बी कैंसल, साइन बाई कॉस इज tan i, tan i इज इक्वल टू वी ई बाई वी एच, वी नहीं, इसको z लिखा है ना हमने, वी हैव रिटन दिस एज z, वर्टिकल कंपोनेंट को हमने z लिखा है, और दैट इज गोइंग टू बी z e डिवाइड बाई एच ई, tan i angle of inclination, tan I angle of inclination is equal to horizontal component of the field, sorry vertical component of the field divided by horizontal component of the field. Okay, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये ZE BE की जगह आप सिंपल लिखना बच्चों BH and BV. BH is the horizontal component of the field and BV is the vertical component of the field. वापस एक बार देखते हैं बच्चों, you will get this kind of a small triangle. This is horizontal component of the field, this is vertical component of the field, and this is the resultant magnetic field. And resultant magnetic field is at the angle of I with the horizontal, right? So from this triangle you can write horizontal is equal to B into cos I and vertical is equal to B into sin I. If you square both of them and add them, you will get resultant field B equal to under root H square plus V square. Okay, and if you divide these two equations, you will get tan I is equal to vertical component divided by horizontal component. Okay, so this is how you can understand the components of the Earth's magnetic field. तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, by declination, inclination and the horizontal and vertical components of the Earth's magnetic field. चलिए कॉपी करेंगे quickly इसको. Okay, now one question is, consider you have a magnetic needle and if you place that magnetic needle on the magnetic pole, right, and the needle is only allowed to rotate in a horizontal plane, right. चलिए मेरा क्वेश्चन ये है, if magnetic needle placed at magnetic north pole, okay, magnetic north pole, right, allow to freely rotate in horizontal plane, right, in which direction will it become stable, in which direction will it become stable, वो किस डायरेक्शन में स्टेबल होगा नीडल. ओके, तो सपोज एक बेसिक फिगर ले लेते हैं अर्थ का. दिस इज द geographic axis, this is magnetic axis, this is geographic north, this is magnetic north, and you are well aware about कि यहाँ से magnetic field बाहर आता है, right, और यहाँ पे फिर magnetic field ऐसे अंदर चला जाता है वापस. तो वी हैव एज्यूम दैट कि एक अर्थ के अंदर बड़ा सा मैग्नेट है, उसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, उसका यहाँ पे साउथ पोल है. अब आपको ये पूछा गया है कि अगर आप ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास एक नीडल को लेके आओगे, let's say this is the needle and which is free to rotate in a horizontal plane, वो horizontal plane में rotate हो सकता है, तो वो किस डायरेक्शन में स्टेडी होगा, in which direction this needle is going to be steady. तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे कि this will remain in any direction, right. क्यों ऐसा? क्योंकि बेसिकली नीडल जो है, बेसिकली आपका जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में रुकता है, जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो मैग्नेटिक फील्ड का. नीडल किस डायरेक्शन में रुकेगा, नीडल जो है वो उस डायरेक्शन में रुकेगा जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. हम तो कहाँ चले गए हैं बच्चों, हम चले गए हैं पोल के ऊपर. अब पोल के ऊपर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कैसा रहने वाला है, नियरली वर्टिकल रहने वाला है. पोल के ऊपर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसा रहना है, नियरली वर्टिकल रहने वाला है. वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का. सो वी राइट हियर एट मैग्नेटिक पोल्स देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. There is no horizontal component of Earth's magnetic field. अगर horizontal component ही नहीं है तो फिर ये needle को direction देगा कौन, कोई नहीं देगा. Hence needle will remain in any random direction. वो कोई direction दिखाने वाला नहीं है. It will remain in any random direction. क्योंकि vertical component से needle जो है
उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई असर होने वाला नहीं है। चलिए, अगर यही नीडल जो है ना बच्चों, अगर ये नीडल को हमने ऐसे फ्रीली लटका दिया, अगर ये नीडल को सपोज मान लेते हैं, यहाँ पर एक नीडल ले लेते हैं, ओके, एंड इफ द नीडल हियर इज सस्पेंडेड फ्रीली ऑन अ साउथ पोल, राइट। अब ये नीडल जो है ना वो ऐसा वर्टिकली भी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। ये नीडल जो है वो वर्टिकली भी अगर ऊपर नीचे हो सकता है, और अगर आपने नीडल को साउथ पोल के पास ले लिया, व्हाट विल हैपन? सो आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन। needle free to rotate in vertical plane, needle free to rotate in vertical plane, placed at magnetic south pole, what will happen? It is placed at magnetic south pole. अब क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे जो नीडल है ना वो वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो साउथ पोल के पास भी खाली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ही होने वाला है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल तो वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, बट क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, नीडल इज ऑल्सो एबल टू रोटेट लाइक दिस, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट नीडल इज गोइंग टू बिकम वर्टिकल। ये नीडल जो है ना वो कैसा हो जाएगा? दिस नीडल इज गोइंग टू बिकम वर्टिकल। और नीडल का कौन सा पोल सरफेस की तरफ रहेगा? तो आपका जो अर्थ है ना बड़ा सा, राइट, उस बड़े से अर्थ का जो मैग्नेटिक या मैग्नेट बार है ना, बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है। तो नॉर्थ पोल के पास कौन सा पोल रहने वाला है? साउथ पोल रहने वाला है। तो ये जो आपका मैग्नेटिक नीडल होगा ना, उस नीडल का जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल, ये नीडल का साउथ पोल रहेगा टुवर्ड्स द सरफेस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नीडल विल बिकम वर्टिकल, नीडल विल बिकम vertical due to only vertical component of the earth field, due to only vertical component of the earth field, ओके। और अगर आपका नीडल साउथ पोल के पास है, कहाँ पर है भाई नीडल? आपका साउथ पोल के पास है, राइट, साउथ पोल के पास है। तो उसका नीडल का कौन सा पोल, नीडल का कौन सा पोल सरफेस की तरफ रहेगा? नीडल का साउथ पोल सरफेस की तरफ रहेगा, और नॉर्थ पोल कहाँ रहेगा? अवे रहेगा। नॉर्थ पोल विल बी अवे। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी है तो ही आप कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे आप, राइट। सो हैविंग साउथ पोल टुवर्ड्स द सरफेस, इट विल हैव द साउथ पोल टुवर्ड्स द सरफेस। साउथ पोल कहाँ रहेगा? सरफेस के पास की तरफ रहने वाला है। अगर नीडल यहाँ पे फ्री होता ना वर्टिकल में घूमने के लिए, तो यहाँ भी नीडल वर्टिकल हो जाता, पर यहाँ पे क्या होता? इधर साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ सरफेस के पास रहता, और साउथ कहाँ रहता? सरफेस से दूर रहता, ओके। बट अगर ये तो कब होगा? जब नीडल जो है वो वर्टिकल में अप डाउन हो सके। तो अगर नीडल ऐसे रखा हुआ है और वर्टिकल में अगर उसको अलाउड ही नहीं है, तो वो खाली ऐसे ही घूम पाएगा हॉरिजॉन्टली, एंड हॉरिजॉन्टली इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड। पोल के पास जाओगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं, सो इट विल अलाइन इन एनी रैंडम डायरेक्शन, इट विल अलाइन इन एनी रैंडम डायरेक्शन। बट अगर उसको ये हटा लिया और डोरी लगा दी ऊपर, तो वो नीडल कैसा हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। और कौन सा पोल सरफेस की तरफ रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए इसमें कॉपी करें फटाफट। ओके, सो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5.8, and this example number 5.8 is the Earth's magnetic field at the equator is approximately 0.4 Gauss. Estimate the Earth's dipole moment. चलिए क्या कहा है? Earth's magnetic field at equator is 0.4 Gauss. चलिए, Gauss is 10⁻⁻⁴ Tesla, right? Okay, so what we will consider? We'll consider the Earth contain a giant magnet, right? Okay, which has a magnetic moment m, and this is the equatorial line. तो बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, and we have the formula of this. So I will write here, considering Earth having giant bar magnet in its core, we can write magnetic field at equator. तो
तो बार मैग्नेट के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, μ0/4π m/r³। राइट, बार मैग्नेट के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/4π m/r³। ये कल ही हमने देखा था। राइट, चलिए बच्चों, नाउ व्हाट इज द आर? आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। राइट, अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है आपका 6.00 किलोमीटर। राइट, चलिए convert this to meter, this 6.4 into 10 power 6 meter. Let's put this value here. Magnetic field आपको दे दिया है 0.4 into 10 power -4, μ0/4π is 10 power -7 वैल्यू। m आपको फाइंड करना है, r कितना है वहाँ पे 6.4 into 10 power 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, योर आंसर इज गोइंग टू बिकम m इज इक्वल टू 1.05 into 10 power 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। राइट, ओके, तो कितना होगा? अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो, अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट, अर्थ का जो बार मैग्नेट हम कंसीडर कर रहे हैं ना अंदर, उसका मैग्नेटिक मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली होगा 1.05 into 10 power 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। Right, and that is very close to the value 8 into 10 power 22 ampere per meter square quoted in the geomagnetic text. Right, तो actual value जो है ना that is somewhat near to 8 into 10 power 22 और ये जो है वो कुछ हमारा 10 into 10 power 22 आया है। मतलब दिस थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर। आपको यहाँ पे आकर रुक जाना है। तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली इस न्यूमेरिकल को। ओके, सो एग्जांपल नंबर 5.9 क्या कहता है देखिए। चलिए एग्जांपल 5.9 कुछ ऐसा कह रहा है कि इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस। चलिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जिसे हम कहते हैं HE। ये दिया है आपको 0.26 गॉस एंड द डीप एंगल, डीप एंगल मतलब I, जो अभी हमने डिस्कशन किया, डीप एंगल I इज गिवन एज 60 डिग्री। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन? ओके, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वहाँ पे वो फाइंड करना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जिसे हम कहते हैं BE, ये कितना होगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। क्या करेंगे हम? वी हैव द वेरी सिंपल रिलेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस आई, जो अभी हमने लिखा था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस आई। सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए HE कितना है? 0.26 इज इक्वल टू गॉस में B फाइंड करना है cos 60। ओके, cos 60 होता है 1/2। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए। दिस इज गोइंग टू बी 0.52 गॉस, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ऐसा पूछा है व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है तो हाँ, तो क्या करोगे? तो यू विल राइट, अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछ ही लिया है तो यू कैन राइट 10i। 10i क्या होता है? 10i होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 1060 is equal to vertical by horizontal, that is 0.26 gauss. This is √3, 0.26 ऊपर मल्टीप्लाई करो, दिस इज गोइंग टू बी द वर्टिकल कंपोनेंट अगर पूछा है तो। बट अभी यहाँ पे आपको पूछा नहीं है। तो इस टाइप के बेसिक एक मार्क के क्वेश्चन है जो आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वहाँ पे हम नेचुरली अकरिंग जो मटेरियल्स है उसका मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स हम सीखेंगे। ओके, ये आप फटाफट कॉपी करिए। इस क्लास को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे।